Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional. Now in this channel we are discussing the various topics of history optional through PYQs. And today we are going to discuss a question relating to the Harappan civilization. And this question is very important because it asks about the urban character of the Harappan civilization. Usually if you see the notes of various coachings available in the market, they generally tell you about the features of Harappan urban centers or Harappan urbanization. They do not tell you about the character का मतलब ये हो गया ना कि whether it was indigenous or whether it was something that was brought from outside, and if it was something that was influenced from outside, then how far was it influenced, was it a sudden act or was it gradual. तो इस तरीके की कुछ कुछ चीजें जो डिस्कशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं character of that particular civilization. And this question, first let us read the question just to tell you that this has been clearly mentioned in Upinder Singh's book. So the source of this question, if you wanted to read, you could have read from that book, right? I think it is page number, I forgot the page number, but anyways, just I hope if you are a student of history optional, you have the book, just turn around the pages, it is given over there. Now the question here reads that the urban character of the Harappan civilization was a result neither of any outside influence, nor a sudden act, but a gradual evolution of regional socio-economic factors and कमेंट. सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या देखना है कि क्या वो कमेंट बोल रहा है या फिर वो डिस्कस बोल रहा है. ठीक है, लास्ट वाले वर्ड्स क्या हैं, क्रिटिकली एग्जामिन, कमेंट, डिस्कस, बिकॉज दिस मेक्स यू अंडरस्टैंड, दिस हेल्प्स यू टू फ्रेम द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द टोन ऑफ द आंसर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कमेंट. कमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया ना कि यू हैव टू गिव योर ओपिनियन. ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको उस स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देना है. And you have to, whatever is your opinion, you have to substantiate it in the answer by giving some relevant facts supporting your opinion. ठीक है, that's it. When a question asks about comment, then that is what you are supposed to do. For example, if यहाँ पे comment नहीं होकर के अगर यहाँ पे होता discuss मतलब क्या होता है? Discuss basically would mean that you have to basically analyze it in depth, the various theories related to the topic, and then give a valid and balanced conclusion. समझ में आ रहा है? Discuss is generally much more detailed, much more in-depth analysis. Now here the question says, first and foremost it says that it was not the result of any outside influence. Second, it says that it was not a sudden act, but it was a gradual evolution and of regional socio-economic factors. तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि द एग्जामिनर वांट्स टू नो वेदर यू नो और नॉट कि अर्लियर इट वाज सेड कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जो अर्बन कैरेक्टर है वो मेसोपोटामियन अर्बन कैरेक्टर से या वहाँ के अर्बन स्ट्रक्चर से लिया गया था एंड वो एक सडन था. ठीक है, इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज ग्रेजुअल. ये अर्लियर बिलीफ था. एंड डू यू नो और नॉट व्हाई दिस अर्लियर बिलीफ वाज बिल्ट. ठीक है, द रीजन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड उपिंदर सिंह यू विल सी कि हरप्पन सिविलाइजेशन का जब डिस्कवरी हो रहा है ना इंडिया में, तो उसमें मैच्योर फेज जो है पूरे सिविलाइजेशन का क्या है, 3 फेज था, मैच्योर फेज, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज. सो द मैच्योर फेज इसका डिस्कवरी सबसे पहले हो रहा है एंड बाद में जब आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और आगे हो रही हैं तब हमें अर्ली फेज मिल रहा है. तो जब तक हमें अर्ली फेज के बारे में पता नहीं था तब तक हिस्टोरियंस को ऐसा लगता था, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता था कि ये जो चीज़ है ना, बिकॉज मेसोपोटामिया के जो राइटिंग्स हमें मिले हैं उसमें हरप्पन लोगों को ना मेलहुआ बोला गया है. ठीक है, और काफ़ी सारा उनके एक्सटेंसिव ट्रेड के बारे में बात की गई है. सो बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन के मेच्योर फेज डिस्कवरी हुआ है, अर्लियर फेज तब तक पता नहीं था एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कॉन्टैक्ट था दोनों के बीच में, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थे दोनों के टाउन प्लानिंग में. फॉर एग्जाम्पल दोनों ही काफ़ी एडवांस थे, दोनों में ही काफ़ी एडवांस राइटिंग सिस्टम वगैरह था. तो इससे लोगों को ऐसा लगा इनिशियली दैट इट वॉज समथिंग दैट वॉज अ डिफ्यूजन फ्रॉम मेसोपोटामिया, समथिंग दैट वॉज मेसोपोटामिया से कुछ लोग हो सकता है स्प्रेड करके यहाँ पे आया है. लेकिन विद ग्रेजुअल डिस्कवरी ऑफ द अर्लियर फेजेस पीपल रियलाइज दैट नो, it was not taken from outside, it was not sudden, it was something that originated organically, which means कि पहले इसका एक रूरल फेज भी था और उसके बाद एक अर्बन फेज आया. समझ में आया? पहले रूरल एरियाज डेवलप होते हैं, उसके बाद सिटीज डेवलप होते हैं. अंडरस्टूड? सो प्योरली दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू नो फ्रॉम यू एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द आंसर. तो इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए? इंट्रोडक्शन शुड बी समथिंग दैट शुड से द एग्जामिनर दैट यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ एंड यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, एंड द लास्ट लाइन शुड ऑलवेज लीड टू द बॉडी.
ठीक है. I can't tell you, I have several copies with me here, just for reference purposes, but anyways, we have some copies here. When I check these copies, okay, just to show you the kind of copies that I have here, these copies when I check, I can't tell you how many times I just read the introduction and I feel कि क्या है ये, ठीक है, द स्टूडेंट हैज़ नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन एट ऑल, एंड ऑटोमेटिकली फिर आपका ना आगे पढ़ने का मन नहीं करता है. सो इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. नाउ आई हैव रिटन एन इंट्रोडक्शन ओवर हियर, एंड दैट इंट्रोडक्शन इज a model introduction, but then remember the best introduction is going to be written by you, by practice, right? So let us read what I have read. In this I have written that when Harappan civilization was initially discovered, the early archaeologists like Mortimer Wheeler, अगर आपको एग्जाम में एक दो नाम याद आए तो you should mention it, and ideally Mortimer Wheeler is a very common name, you should remember. So Mortimer Wheeler suggested that the urban character of the Harappan civilization was a diffusion from Mesopotamian civilization and might have been a sudden act. Okay, so the examiner till he reads here, he or she will know कि ठीक है, चलो इसको आगे पढ़ने के लायक है, इसको पता है what he is talking about. Next is, these initial theories were based on factors like chronology. Yes, another very important thing is कि chronology में Mesopotamian urbanism took place a few centuries earlier. ठीक है, ये भी एक चीज़ है कि अगर हम जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, व्हेन दे वर एक्सकावेटिंग, देन दे सॉ कि जो हम जिस तरीके से डेटिंग करते हैं उसमें ऐसा देखा गया कि मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन थोड़ा पहले हुआ था, मतलब अराउंड 500-600 साल पहले हुआ था कंपेयर टू व्हाट इट टुक प्लेस ऑफ द हरप्पन. तो इसलिए भी लोगों को लगा कि हो सकता है मेसोपोटामिया में पहले हुआ होगा और वहाँ से इंडिया में आया है. ठीक है, so on factors like chronology, trade contact, discovery of mature phase first, and some similarities like advanced writing system, planned cities, and so on, right? Next I say that but sustained archaeological research has firmly established that the Harappan civilization was indigenous and a gradual process shaped by regional socio-economic factors based on the following observation. So ye has something that is automatically leading to the body, and now in the body I am going to give some points and I am going to discuss why it was gradual मतलब हो गया कि it had a proper, इसमें एक नियोलिथिक पीरियड था, उसके बाद ये कैल्कोलिथिक पीरियड बना है. ऐसा नहीं है कि एकदम से इट बिकेम अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. ठीक है, एकदम से लोगों को ब्रॉन्ज यूज करना आ गया एंड इनको अर्लियर फेजेस के बारे में पता नहीं था, राइट? सो ग्रेजुअल मीन्स इट हैड अ प्रॉपर डेवलपमेंट, पहले रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, एंड इन रूरल एरियाज ऑल्सो व्हाट आई मीन इज कि एकदम से रूरल एरियाज भी नहीं बन जाएंगे ना, विलेजेस के पहले वाले जो फेजेस हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो नियोलिथिक पीरियड है वो भी है, हमारे पास अ लिटिल बिट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो देयर, वी हैव कैल्कोलिथिक ऑल्सो, एंड ग्रेजुअली इट इज द प्रॉपर मेच्योर एडवांस्ड ब्रॉन्ज एज हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट? And this took place not because of influence from Mesopotamia but regional factors. ठीक है, for example here regional socio-economic factors मतलब हो गया कि these हरप्पन people, ये लोग क्या कर रहे थे ना कि ये लोग आपस में काफ़ी सारे सेंटर्स थे, छोटे छोटे गांव इमर्ज हो गए, गांव एंड शहर का मिक्सचर, various sites were there and these sites they had some unique characteristics. फॉर अलग अलग साइट्स का, बिकॉज जोग्राफी अलग है ना, अगर जोग्राफी अलग है, किसी साइट में हमें मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन सम साइट्स वी हैव डॉकयार्ड, इन सम साइट्स वी हैव फायर ऑल्टर, इन सम साइट्स वी हैव फॉर एग्जाम्पल मेजर टाउन्स लाइक वी हैव जहाँ पे हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिले हैं लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा. कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हमें पॉटरी ज़्यादा देखने को मिल रहा है. तो इस तरीके से कुछ साइट्स, अलग अलग साइट्स के अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल द वे द सिटीज़ वर डिजाइंड, फॉर एग्जाम्पल ग्रिड शेप पैटर्न. अनदर थिंग इज फॉर एग्जाम्पल द वे दे यूज टू द ब्रिक साइजेस, वो भी का है, कॉमन मिला है हमें सबके बीच में. सो दे आर रीजनली डाइवर्स बट there is a cultural similarity between them. Don't have to worry about all of these things. जैसे हम आंसर पढ़ेंगे ना, it is going to be clear to you. First point why we say that it was a gradual regional socio-economic process is excavations at मेहरगढ़. मेहरगढ़ में मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ इज अ साइट इन बलूचिस्तान एरिया. प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो बलूचिस्तान एरिया जो है वहाँ पर मेहरगढ़ सिविलाइजेशन था, एंड वी नो हरप्पन सिविलाइजेशन का भी मेजर एरियाज कहाँ पे था? उसी एरियाज में था. ठीक है, सो मेहरगढ़ में हमें ये जो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मैच्योर फेज नहीं मिला है, मैच्योर फेज के पहले वाले फेजेस भी हैं, वो भी हमें मेहरगढ़ में मिला है. सो जनरली इट इज सेड दैट मेहरगढ़ was a kind of the earlier kind of phases that led to the gradual mature Harappan phase. Okay, so it was a gradual process, it was not a sudden process.
Here I have mentioned the name of J.F. Jarich. He has said that the development of agriculture and pastoralism at Mehergarh laid the foundation for urban Harappan settlements rather than sudden urban revolution. इस point को हम आगे आते हैं. इसका मतलब ये है कि what it's एक understand this thing. For a city or an urban area to thrive, what you need is food surplus. फूड सरप्लस होगा तभी एक सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल यू नो इन द पॉपुलेशन दे विल बी एबल टू डू ट्रेड, बिकॉज उनको खाने के लिए काम करने की, बिकॉज उनको खाना उगाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी किसी ने खाना उगाया हुआ है, वो खाना सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल है, तो ये पर्सन पैसे कमाने पे ध्यान दे सकता है और उस पैसे से ही कैन बाई द सरप्लस फूड. सो व्हाट दिस पॉइंट दैट इज दिस J.F. Jarrett's आर्गूमेंट एज वेल एज इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर का जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, what it means is that initially this Indus as well as this Ghaggar Hakra rivers, they supported stable agriculture, ensuring food surplus, which in turn facilitated the growth of trade and urban centers. So again we see कि gradually वो develop हो रहा है. पहले food surplus आया, उसके बाद urban centers बने and trade जो है हमारे पास proper urban cities हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है. Third point is culturally unified even though regionally diverse. Yes, this is very important. यहाँ पे जो सेकंड पार्ट था ना, दैट इट वाज बेस्ड ऑन रीजनल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो वो इस चीज से यहाँ पे प्रूव होता है. हाउ? बिकॉज यहाँ पर बोल रहे हैं कि इवन दो दे वर रीजनली डाइवर्स. फर्स्ट लेट अस सी दिस एग्जांपल. कोस्टल साइट्स इन गुजरात, फॉर एग्जांपल गुजरात के कोस्टल साइट्स लाइक लोथल, दे हैव अ डॉकयार्ड. लेकिन डॉकयार्ड हमें कहाँ देखने को नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल राखीगढ़ी में हमें डॉकयार्ड देखने को नहीं मिल रहा. वहाँ के साइट के कुछ अलग फीचर्स हैं. तो इस तरीके से तो आप बोल सकते हो कि यार इनमें कुछ कॉमन फीचर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है. वी नो दे आर ऑल कनेक्टेड. वाई? बिकॉज अच्छा, फर्स्ट वन लेट अस सी अदर साइट्स एज वेल. Maritime, basically coastal sites, so maritime trade. Punjab, Sindh plains saw emergence of large urban centers like Harappa and Mohenjo-daro, but with grid planning. Some sites they lacked formal grids, but they had unified cultural factors. For example, common drainage system, standard bricks, ratio bricks का same था of almost all the sites, standard weights and measures. इससे ना एक चीज हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि अच्छा एक और चीज यहाँ पे पढ़ते हैं. रीजनली डाइवर्स बिकॉज देयर okay, here I have not explained it maybe that well, but one thing we have to understand कि ये हमें क्या दिखा रहा है कि अलग अलग साइट्स जो है ना, अलग अलग साइट्स के अलग अलग फीचर्स हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन बाइंडिंग फीचर्स हैं. जैसे कि हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम, द वेज द सिटीज वेर प्लान्ड, वेट्स एंड मेजर्स, रेशियो ऑफ ब्रिक्स. व्हाट डज दिस सजेस्ट? दिस सजेस्ट्स दैट दीज पीपल हैड कम टुगेदर एंड इट हैड कम टुगेदर एंड इन्होंने एक ऑर्गेनिकली मिल के डिसाइड किया कि हमारा सिटी प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि हम ये ट्रेड आपस में अच्छे से कर सकें. अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रॉपरली. ट्रेड, बिकॉज दे यूज टू डू ट्रेड विद ईच अदर अलॉट, दैट्स वाई दे हैड, ये सारे साइट्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, ये सारे साइट्स आपस में ट्रेड करते हैं. बिकॉज ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं, इनको ये रियलाइज होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए जो कि हमें ट्रेड करने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा. सो दिस ट्रेड नाउ कंपेल्स दीज पीपल टू कम अप विद अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एज वेल एज कॉमन लॉज, कॉमन टाइप ऑफ प्लानिंग, ऑल फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड. I hope you are following me till here. Now what it says is कि this becomes more clear because हरप्पा में हमें कोई भी अभी तक पैलेस देखने को नहीं मिला है, बड़े बड़े पैलेस टाइप बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स दैट वी कैन से इट वाज समथिंग दैट वाज, यहाँ पे जो रूलिंग राजा कोई होता था, राजा के इस तरीके से हमें कोई अभी तक जो एक्सकवेशंस हुए हैं उसमें कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है दैट देयर यूज्ड टू बी अ पैलेस और अ किंग और समथिंग लाइक दैट. We have also not found major religious structures. For example, Mesopotamian civilization में we have ziggurats. Ziggurats basically were kind of रिलीजियस स्पेसेस, तो वैसा भी हमें कोई डेडिकेटेड ऐसा स्पेस स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है. सो हरप्पन्स को अल्टीमेटली रूल करता कौन था? तो कौन था? इफ इट वॉज नॉट अ किंग, इफ इट वॉज नॉट अ रिलीजियस लीडर, एंड रिलीजियस लीडर इज अ लिटिल डाइसी. सो हु वर दीज? हाउ डिड दे कम अप विद दिस common feature if there was no central authority? So here they are saying that it was trade, and this trade forced them to build a common structure and gradually and a common planning for this urban centers. Understood?
सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस पॉइंट हियर. फॉर एग्जांपल, मैंने इसको और आगे एक्सप्लेन किया है. द हरप्पन्स हैड एक्सटेंसिव इंटरनल ट्रेड सीन फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड सो ऑन. This internal trade created the need for regularization, which in turn led to development of integrated administrative structure, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, and urban planning, technological advancement in brick making. Anyways, so यही पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. If you do not understand, just ask me in the comment section. Whatever is your doubt regarding this, I am going to explain that. Next point is, how do we know it was a kind of gradual socio-economic process, regional gradual socio-economic process. Yes, previous एक point से हमें ये समझ में आ रहा है कि it was a regional process. It was not influenced by Mesopotamia. For example, Mesopotamia में I told you palaces मिले हैं, ziggurats मिले हैं, जो कि यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है. ओके, सो स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स लाइक स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, मेटलर्जी, सेम थिंग कि हमें कॉमन पॉटरी मिला है, हमें कॉमन रेशियो ऑफ ब्रिक्स मिला है, हमें कॉमन ड्रेनेज सिस्टम मिला है, कॉमन बीड मेकिंग. जो फॉर एग्जांपल कुछ साइट्स हैं, वो कुछ हरप्पन साइट्स हैं, वो फॉर एग्जांपल बीड्स बना रहे हैं, कुछ फॉर एग्जांपल अच्छा पॉटरी बना रहे हैं, और आपस में ये लोग इस चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है. So this shows that it was an internally coordinated system rather than externally imposed model. ठीक है. And another point it says is the urban planning and social organization of the Harappan civilization shows that social organization gradually became complex, leading to planned cities with proper streets and grid layout and so on. This uniformity in town planning without any central authority suggests that such planning was rooted in socio-economic organization and civic discipline rather than elite dominance. Okay, this is a point that I already explained you. And finally we are saying to the examiner कि कुछ fundamental, definitely we know कि outside influence नहीं था because कुछ fundamental differences हैं between Mesopotamian and Harappan civilization. For example, Mesopotamian cities जो है ना, they grew organically and irregular, planned नहीं था. लेकिन हरप्पन जो cities हैं, they were planned. That means कि पहले से सोचा गया है कि हाँ इसको ऐसे बनाना है और ऐसे अलग अलग sites में उसको implement किया गया है. समझ में आया? It was something that was planned earlier, and that can only happen if it is consented by the various people of the sites that yes, we are going to apply this to us. Okay, next is a sharp division existed in Mesopotamia between sacred and secular spaces. ठीक है, वो जो for example there were some monuments as ziggurats, some were palaces. तो इस तरीके से कुछ secular areas अलग, हमें temples के आसपास वाले, उनके जो ziggurats के आसपास वाले areas हैं, we see other supporting structures nearby जो कि ये suggest करते हैं that they were basically this sacred spaces and other areas were secular. लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है. वहाँ पे डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी. फंक्शनैलिटी बेसिकली मीन्स कि जो एलिट्स हैं वो अपर पार्ट में रह रहे हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ द टाउन है वहाँ पे घर जो हैं वो कंपैरेटिवली दे आर स्मॉलर इन साइज एंड सो. and then irregular brick size and यहाँ पे common bricks and so on. So these are some fundamental differences that suggest that yes, they too were Mesopotamia, Harappa, they were different. It was a gradual process. It was not a sudden imposition from above. Thus, and how you will conclude? Conclusion में basic चीज़ है, आपने already सब कुछ discuss कर दिया है. So now what you have to do is you have to just sum it up. So the way I have summed it up is, thus the urban character of the Harappan civilization was a result of indigenous evolution shaped by regional socio-economic dynamics rather than external or sudden transformation. ठीक है. So already जब आपने इतना information you have written in the introduction and body, it's better to write a simple conclusion. Okay, and definitely for notes and also for daily targets, please go and join the Telegram channel. It keeps me motivated as well. So thank you and see you in the next video.